So again, welcome to course of this Computer Integrated Manufacturing System and lecture number 8. In this lecture, we are going to attend the and try to learn the how the automatic program tool programming language to prepare any CNC manual part programming will attend. In this lecture, we are going to attend the or try to understand the geometric statement for defining how a point, then line, then circle. तो इसके अंदर हम जनरली कैसे पॉइंट को डिफाइन करते हैं, कैसे लाइन को डिफाइन करते हैं और कैसे किसी सर्कल को डिफाइन करते हैं, उस चीजों को समझेंगे. सो इन जनरल आई मस्ट से दैट कि कोई भी जो एपीटी प्रोग्राम होती है वो प्रिपरेटरी और सीएनसी के जी कोड एम कोड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है. डिफरेंट इन द सेंस इसके अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं. उस सेक्शन में पहले हम ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं कि हमारी ज्योमेट्री कैसी है. जैसा कि आप जी कोड और एम कोड्स के अंदर करते थे कि ज्योमेट्री के साथ साथ आप कटिंग एक्शन भी कर लेते थे. इसके अंदर आपको पहले ज्योमेट्री को डेफिनाइट करना होगा. तो ज्योमेट्री को पहले करेंगे और उसके बाद सारे के सारे मोशन स्टेटमेंट्स होंगे. ये दोनों पार्ट अलग अलग होंगे इसके अंदर. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू हैव ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट 3. So about the APT, APT is automatic program tools. The acronyms is a APT. Developed in early 1960s to assist the engineer in defining the proper instruction and calculation of NC programming. A great strength of APT is ability to perform precise calculation for complicated tool path when the contouring on the 3-dimensional surface and multi-axis programming mode. The type of statement are first geometrical statement, that is define the geometry, then motion statement, then there are several post-processing statement would be there, and few are auxiliary statement. रूल्स ये है इसके कि यू नीड टू डिफाइन द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, देन फर्स्ट डिफाइन देन यूज. पहले आप किसी भी ज्योमेट्री के किसी भी पॉइंट को, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे कुछ भी हो, तो पहले आप डिफाइन करेंगे, देन उसका यूज लेंगे फर्दर इन द प्रोग्रामिंग. वन सिंबल वन ज्योमेट्री. ओके, दीज आर दी रूल्स. नाउ कोई भी एपीटी बनती है उसके अंदर लेटर्स काम में आते हैं, ABCD एंड सो ऑन, एंड न्यूमरल्स 0 1 2 3. पंक्चुएशन देयर आर मेजरली यूज्ड इन अ फॉरवर्ड स्लैश, मेजर वर्ड्स के लिए या वर्ड्स के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल गो, लेकिन पास्ट, गो टू, इस तरीके से इसके बीच में हम ये फॉरवर्ड स्लैश काम में लेंगे. Then equal to is going to be have a assignment like C1 is the variable, उसको C1 assign हुआ है उसके सर्कल की डेफिनेशन से कि this is C1 circle having a this kind of attributes. Now parenthesis is enclosing the nested definition. कोई भी definition होगी उसको हम nested definition होगी उसको हम parenthesis से यूज में लेंगे. Dollar statement to continue in the line, this is line break. This is would be line break. Double dollar just highlight notation of the part for any comment for your reference and for your easiness and for your retrieval of the what you have done. The words, there is a restriction. You cannot have a more than 6 words. So restriction would be, what would be, you should have to be a word or any number, any variable should have at least 1 word or 6 letter. That is a combination of alphabets plus numerals. Both should be combination is allowed, but upper limit is equal to less than 6 or this. Keywords are fixed meaning, all are reserved.
You are not going to make any kind of new word. There are fixed. No new words are allowed. No new words are allowed. Okay. Further, first character must be a letter. This is compulsory one. The combination of alphanumeric is first character would be any ABCD alphabets, then followed by any number. Further, you may include the alphabet also. Label for a reference statement. Number algebraic meaning, that is maximum 15 digit. Angle, convert degree to decimal. You are not supposed to allow this kind of thing. You should have to convert them into the decimal. Arithmetic, like positive, negative, multiplication, division, and exponential. These are allowed. Further, additional library functions such as that are have a usual meaning: absolute, square root, sine, inverse of tan, and log, and so on. This kind of additional library function is allowed. Now, for example, I need to have create this kind of geometry, and with the help of APT programming, I would like to try to have a contour look like this. This is available into your CAD CAM, Grover, and Zimmer book. You may refer Grover and Zimmer book. So we should have to divide this thing into look like this. First, uh, first this one is my point number one. This is my point number one. This is my point number two. This is my point number three. Point number four. Then between the point number one and point number two, there is a line number one. Line would be have a different definition. I'll cover in a upcoming slide. Then between the C1 and P4, there is line number 2. It will be defined as a line number 2, and P4 to P1 would be defined as a line number 3. Okay. At a circle P3 and with a P2, we can define the line circle C1. That is this one. So this is the preliminary notation. If you want to be if you would like to define the geometry statements, in this case, as you may notice that there is a P0 is there. There is my tool home. This is my tool home, where the tool is initially located. From this, we have to define following geometrical statement like P0, P1, P2, P3, P4, line 1, C1, line 2, line 3, and any plane. So these are known as a geometrical statement, and they are look like this. This is the just example to look at upon. We will go a little deeper in next upcoming slides. Okay. Any problem? किसी को कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा हो? Fine. Okay. Now these are the again example regarding as जैसा कि आप उसमें करते थे S लिखते थे और 1500 या 1000 लिखते थे. इसकी जगह हम ये सिंटैक्स लिखेंगे SPINDL, spindle. Okay. Then FEDRAT, feed rate, at this much of amount. Okay. Inch per minute. This is inch per minute. This is RPM. कूलेंट के लिए फर्दर यू मे नोटिस दैट कि इसके अंदर कोई भी 6 से लार्जर नहीं है. चेक करिए, ये कोई भी 6 से लार्जर नहीं है.
These all are fall under the category of that statement that no one word would be larger than 6. अब नाउ कुछ लिखा फ्रॉम, गो पास्ट, ये वर्ड स्लैश यूज हुआ है, गो अप, गो राइट, गो फॉरवर्ड, देन फास्ट, रैपिड, जिसको आप Z00 कहते थे, इस तरह से, फिर कूलेंट ऑफ और फिर फिनिश। लाइक दिस यू हैव टू प्लीज मेंशन दैट कि आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अगर इस सिंटैक्स में आपने कोई भी गड़बड़ की, आई विल नॉट अलाउ। सिंटैक्स वुड बी सिंटैक्स, एज यू नो, अगर कंप्यूटर को आपने एक भी गलत कमांड दी, दैट विल नॉट गोइंग टू रन, ओके, इट विल प्रोवाइड यू अ एरर। इज इट क्लियर? सो देखिए यहां मैंने यहां पे कुछ ट्राई किया है कि सेट द स्पिंडल स्पीड, सेट द फीड रेट, टर्न द कूलेंट ऑन, गिव द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द टूल, then initialization, contour motioning, drive, part, check surface, all these going to be happen with this command. This is compulsory one, कि ये एक बार पूरे को चेक करेगा, प्लेन नंबर 1 से लगा के लाइन नंबर 3 से लगा के 1 तक सब कुछ चेक करेगा एक बार कि एवरीथिंग इज राइट, देन फाइन, देन इट विल गोइंग टू मूव फर्दर। सो मोशन कंट्रोल टू कंटूर दी पार्ट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसा भी हम कहते हैं कि ये इस तरह से चलने की कोशिश करेगा। मूव रैपिडली वंस कटर इज डन, रैपिडली जब कटर ने अपना काम खत्म किया तब रैपिडली मूवमेंट करेगा, रिटर्न टू होम पोजीशन, टर्न ऑफ द कूलेंट एंड एंड द प्रोग्राम। ओके, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? एम आई ऑडिएबल? यस सर। सर इसमें मशीन का क्या होगा सर? बताता हूं, है ना, धीरे धीरे सारी चीज बताएंगे, ठीक है। नाउ अब हम एक पहले सबसे पहले की बात करते हैं कि एपीटी प्रोग्राम में पॉइंट डेफिनेशन कैसे डिफाइन होती है। ये पॉइंट डेफिनेशन है, उसका सिंटेक्स क्या कहता है हमें कि तुम कोई सिंबल लिखोगे, फिर इक्वल टू साइन लगाओगे और POINT, इट शुड बी इन अ कैप, ठीक है, इट शुड बी इन अ कैप और इट मे बी नोन एज अपर केस, ठीक है। इसके अलावा आप नहीं लिखेंगे समथिंग, अगर किसी ने इस तरीके से लिखा देन इट इज रॉन्ग, किसी ने ऐसे लिखा तो भी रॉन्ग है। पहले मैं बता देता हूं ये क्लियरली, those who are attending the class, they may know that they should not have to make this silly mistakes, okay। फर्दर आप पैरामीटर को इसकी एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। अब कैसे करेंगे? अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है आपके, जिसमें आपने x y और z से चल रहे हैं आप, तो उसमें कोई भी पॉइंट नंबर P1 होगा, इक्वल टू साइन लगाएंगे, P पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद में 50 50 75 पे कोई पॉइंट डिफाइन हुआ है, इसका मतलब x है, ये y है और ये z है। इट इज अंडरस्टूड इनहेरेंटली, ठीक है। अगर आपका कोई पॉइंट ऐसा है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई पहले से ही लाइन डिफाइन है L1 लाइन और कोई लाइन L2 डिफाइन है ऑलरेडी, जैसा मैंने पहले कहा, फर्स्ट इंट्रोड्यूस देन यूज। अगर L1 L2 पहले से ही डिफाइन है और उसको यूज में लेते हुए उनका इंटरसेक्शन आप यूज करना चाहते हो, then you should have to write like point number 2 या 3 4 whatever with this syntax, intersection of, it should be in a capital letter and no manipulation in this word is allowed। कुछ बच्चे, मैंने चेक किया है, प्रोग्रामिंग देते हुए ऐसे लिखते हैं int of, not allow। कुछ लिखते हैं intersect, not allowed, ये अलाउड नहीं है। द सिंटैक्स शुड बी सिंटैक्स, isn't it? सो इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो जहां पे इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट ये पिक करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा, उसके x y z स्टोर कर लेगा। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल, अब लाइन और सर्किल के इंटरसेक्शन कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूं। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसको ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल
मैंने कि कोई सर्कल है मेरा और मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसको नाम C1, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है L1। अब आप क्या यूज में लेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरा ये x था, y है और ये x है, दोनों एक्सिस है। सो नाउ यू हैव थिंग्स लुक लाइक दैट कि आपके पास में यहां से इंटरसेक्शन दो होते हैं एज यू नो। अब इसमें से कौन, मैं अगर ये कमांड देता हूं P3 और मुझे पॉइंट नंबर 3 यहां चाहिए, तो मैं कैसे इसको करूंगा? अगर मैं सिर्फ लिखता हूं कि इंट ऑफ L1 एंड C1, है ना, इंट ऑफ L1 एंड C1 यहां पे जो है, अब इसकी जगह आप L1 लिखेंगे, इसकी जगह आप C1 लिखेंगे। अब यहां से देखिए आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज है, वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। इसके लिए दिस वन वुड बी एक्स स्मॉल एंड ये वाला जो होगा वो होगा एक्स लार्ज। ठीक है, अगर आप इंटरसेक्शन में इन दोनों वर्ड में से कोई एक चूज करते हैं, कोई एक चूज करते हैं तो पॉइंट, अगर आप स्मॉल चूज करते हैं तो पॉइंट विल बी दिस, अगर आप लार्ज चूज करते हैं तो पॉइंट विल बी दिस। देयर आर फोर kind of set of possibility, but anyone maybe you can choose either x either y। इसमें से ये इसका y स्मॉल है, गॉट इट, एंड ये इसका y लार्ज है। ओके, अब आप कहते हैं कि मुझे पॉइंट नंबर 3 चाहिए और वो मुझे चाहिए POINT, मैं ये वाला चूज कर रहा हूं। सो आई कैन गो फॉर x लार्ज। इसके लिए आप इस तरीके से लिखेंगे, आप देखिए वापस ये 6 कैरेक्टर का ही है। उसके बाद लिखेंगे इंट ऑफ L1 comma C1। So P3 would have coordinates of x, y and z related to this। अगर आप इसकी जगह पे, इफ यू ट्राई टू एक्स लार्ज की जगह पे, यहां पे अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं यहां पे y स्मॉल लिखूं, देन इट्स ऑल्सो अलाउ इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। सो एनी कॉम्बिनेशन वुड बी वर्क, एनी कॉम्बिनेशन वुड बी वर्क। ओके, बट ध्यान रखिए जो यहां पे है वो यहीं पे आएगा। इसकी जगह अगर आप y लार्ज लिखते हैं तो वो पॉइंट ये अपीयर होगा। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? पॉइंट को फोर्थ टाइप है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। जब दो सर्कल होंगे उनको इंटरसेक्शन करना है तो सिमिलर केस है, दो सर्कल ये है आपके, उन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। आप अपनी y देखिए, अपनी x देखिए, वहां कोई एक पॉइंट होगा जहां पे ये x स्मॉल भी होगा, हो सकता है x स्मॉल x लार्ज कंबाइन करे। इन दिस केस x और x स्मॉल एंड y स्मॉल आर ओवरलैपिंग, then you should have to go for a y large and y small। is it clear? तो आप यहां पे चूज करेंगे, अगर मुझे ये वाला पॉइंट कंसीडर करना है तो आई वुड लाइक टू गो फॉर ए y स्मॉल। सो P4 पॉइंट y स्मॉल इंट ऑफ, अगर इसको C1 लिखते हो तो यहां से सर्कल 1 की जगह C1 लिखेंगे, और इसको आपने C4 लिखा हुआ है ऑलरेडी तो इसको आपको यहां पे C1 C4 लिखेंगे। फिफ्थ टाइप ऑफ पॉइंट डेफिनेशन है वो है कि पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू। पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू लिखने के लिए आप कोई सिंबल यूज करेंगे, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, फिर आर थीटा लिखेंगे। दिस इज फॉर अ पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब आपको यह देखना है कि पोलर कोऑर्डिनेट में मेरा प्लेन कौन सा है, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स। किसी भी प्लेन पे लिखेंगे, उसके बाद रेडियस असाइन करेंगे और उसके बाद एंगल असाइन करेंगे, जैसा कि हम हर पोलर के लिए यूज में लेते हैं। यहां मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि पॉइंट 5 नंबर डिफाइन किया है, वो किया है POINT स्लैश आर थीटा, दैट इज द सिंटेक्स। देन आई नोट, यहां पे जैसा फिगर में दिखाया हुआ है ये मेरा y एंड z प्लेन है, ये मेरा y एंड z प्लेन है। इस y z प्लेन को मैंने चूज किया है, बट द रेडियस इज द 20.4।
20.4 इधर से हो, y पे हो या z पे हो, इट्स ओके। 20.4 और 20.4 को 38 एंगल जो पहला यहाँ पे आएगा उससे रिलेटेड होगा। ये जो पहली एक्सिस आपने डिफाइन की है वाई जेड प्लेन का मतलब वाई एक्सिस फर्स्ट है, तो वाई एक्सिस से 38 डिग्री बनाएगा, यानी कि यहां से रेडियस मेजर करेगा, ये रेडियस होगी 20.4 और उस पे चलेगा 38 डिग्री, सो यू विल गेट द पॉइंट, सो दैट इज वुड बी माय P5. Last two are sixth definition of to define the point on any circle, या किसी एक्सिस पे डिफाइन करना है ऑन अ सर्कल विथ एन एंगल विथ एक्सिस। ठीक है, सिंबल कोई भी यूज लीजिए, फिर पॉइंट दीजिए, और कोई सर्कल का जो मैं लोअर केस में लिख रहा हूं दैट वुड बी अ वेरिएबल। यहां मैंने जितने भी लोअर केस लिखे हैं दैट आर वेरिएबल। ओके, अब सर्कल कोई भी डिफाइन करेंगे C1 C2 C3 C4 और एट एंगल दिस इज 6 कैरेक्टर, सो दिस इज माय सिंटैक्स। और अब उस एंगल का मेजर वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है, ये इसको मैं कहता हूं C1। इस सर्कल पे मुझे पॉइंट नंबर 6 डिफाइन करना है इस तरीके से, दिस इज माय पॉइंट नंबर 6। सो पॉइंट C1 ये सर्कल है, चाहे 4 सर्कल भी हो सकते हैं यहाँ पे, कि ऑलरेडी आपके कोई डिफाइन सर्कल है या ज्योमेट्रीज है, कुछ भी है, ये सारी चीजें डिफाइन है। उस केस में आप उस केस में आप यहाँ पे किसी भी सर्कल को डिफाइन करेंगे जिसके ऊपर आपको पॉइंट चाहिए। नाउ सर्कल विथ अ पॉइंट, सॉरी, एट एंगल C1 एट एंगल, इसका मतलब है कि इस सिंटेक्स का मतलब है कि आप इसको सिर्फ एक्स एक्सिस से ले रहे हो, ये सिंटेक्स एनी अदर एक्सिस के लिए फॉर वाई एंड जेड इज नॉट एप्लीकेबल। ये स्पेसिफिक है, दिस इज वन स्पेसिफिक। सो एट एंगल 18 डिग्री 0.75, सो दिस इज वुड माय पॉइंट नंबर 6। अगर किसी सर्कल का आपको सेंटर डिफाइन करना ओनली, कि मेरे सेंटर को ही मैं पॉइंट डिफाइन कर दूं, इन दिस केस पहले से कोई सर्कल आपने डिफाइन कर रखा है विद द सर्कल की जो भी आपकी डेफिनेशन है उसके थ्रू। अब आप चाहते हैं कि इस पॉइंट नंबर यहाँ पे मैं 0.7 डिफाइन करूं, उस केस के लिए सिंबल आप देंगे, पॉइंट करेंगे और सिर्फ लिखेंगे CENTER, सेंटर ऑफ C1। सो कितने नंबर के हमने देखे इसके अंदर? हमने देखे अभी तक 7 काइंड के डिफरेंट पॉइंट डेफिनेशन। फर्स्ट रेक्टेंगुलर, then intersection of two line, intersection of line and circle, intersection of two circle, polar coordinates with the help of circle with at angle, और किसी भी सर्कल का सेंटर। Anybody have any problem till this slide? किसी को कोई दिक्कत आ रही है? प्लीज से यस एंड नो बोथ। जो यस बोलना चाहते हैं वो यस बोलिए, जो नो बोलना चाहते हैं नो बोलिए। बताइए मुझे कहाँ आपको कहीं कहाँ प्रॉब्लम है, अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई और उसके बाद में दिक्कत होती है। एनीबडी हैव प्रॉब्लम? आई एम अलोन इन द क्लास? नो सर। अनिकेत, गौरव, आर यू देयर? यस सर। जयंत, मयूर, जयंत, मयूर? नो सर। यस सर। ओके ओके, थैंक्स 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 जयंत। अब आती है लाइन की डेफिनेशंस। लाइन की डेफिनेशन के लिए सिंटैक्स है हमारा कि कोई भी सिंबल अगेन जैसा पहले मैंने डिफाइन किया, जिसका फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए। नाउ कोई भी लाइन होगी, चाहे आपकी कोई भी सिंबल लिखिए, उसके लिए सिंटैक्स है LINE, दिस वुड बी इन कैपिटल लेटर्स और अपर केस, देन फॉलोड बाय द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट लाइन। बाय 2 पॉइंट, हमेशा 2 पॉइंट से डिफाइन करेंगे अगर हमारे पॉइंट्स पहले से डिफाइन है तो। नहीं डिफाइन है, जैसा यहां मैं लिखना चाहूं L1 इज इक्वल टू LINE
स्लैश पॉइंट नंबर 1 जैसा मैंने पहले फिगर में दिखाया था, एंड इट वुड बी हैव पॉइंट नंबर 2। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी स्टोर्ड है, एक्स वाई जेड ऑफ पॉइंट नंबर 1 एंड एक्स वाई जेड ऑफ पॉइंट नंबर 2 ऑलरेडी स्टोर्ड है। इन दोनों के बीच में ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आपने कोई पॉइंट डिफाइन नहीं किए, सो यू कैन हैव अ डायरेक्टली इंट्रोड्यूस योर पॉइंट हियर ऑल्सो। लाइन नंबर 1 LINE स्लैश, आप यहां x1 y1 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए हॉरिजेंटल लाइन 50 और 10 पे से मुझे चाहिए 110 पे। सो इट वुड बी 10 इज द माई y1 y2, दिस इज माई y1 y2 एंड दिस इज माई x1 x2। सो अगर मेरा ये x एंड y है और मैं सोचता हूं कि मेरा 50 करीबन अगर इस तरीके से है, तो ये अगर मैं 20 40 60 80 कहता हूं, so 50 would be somewhere here and 10 is the, अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा 10 20 30 40 है, so 10 and 50 would be there. This is my 50 comma 10 and further this is my 100 comma 10. So this one would be known as line number 1. ठीक बात है। फिर आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेयर यू विल हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू असाइन all three coordinates at first 3 place and next 3 place all the coordinates of second point. So both the example we have discussed, as one of the coordinate axis, किसी भी coordinate axis को आप line define कर सकते हो, किसी भी coordinate axis को आप line define कर सकते हो, चाहे वो x है, y है and ये z है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, line to line x axis, so x axis would become the line number 2। इसकी लिमिट कोई नहीं होती है कि लाइन नंबर 2 की लिमिट क्या है, क्योंकि ये x axis जितनी लंबी होगी उतनी होगी। ऑल आर विथ मी? सो नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय अ पॉइंट एंड अ पर्टिकुलर लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर टू द एनी लाइन। कोई लाइन है, इसके अंदर मैंने दिखा रखी है कि कोई भी लाइन है, जैसे कि लाइन नंबर 4 ये मुझे बनानी है, तो येलो वुड बी माई एनविसेज्ड लाइन, एनविसेज्ड लाइन जिसको मुझे बनानी है, कोई जेड भी लिखता है। सो ये लाइन बनानी है, पॉइंट P1 पहले से डिफाइन है, L1 पहले से चल रही है, ये दोनों ऑलरेडी डिफाइन है, बट आई नीड टू हैव कि ये लाइन जो मैं ये बनाने जा रहा हूं, लाइन नंबर 4, that would have a perpendicular to the line number 1 and should have to pass through point number P1। okay, in this case मुझे ये लाइन बनानी है जो L1 से तो परपेंडिकुलर हो और P1 से पास होती हो। इन सच अ केस हम लिखेंगे लाइन P1 परपेंडिकुलर टू, perpendicular to PERPTO, L, that's it. By parallel line at a distance, यानी कि एक लाइन है जो L1 है, उससे मुझे पैरेलल ड्रॉ करनी है, पैरेलल ड्रॉ करनी है लाइन नंबर 5 बट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15.2। इस डिस्टेंस पे करनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, लाइन पहले डिफाइन करेंगे वेरिएबल, फिर लाइन लिखेंगे। पैरेलल की सिंटेक्स क्या है, PARLEL, देन L1 y लार्ज किसकी तरफ है, y बड़े की तरफ, y लार्ज की तरफ, यानी इट्स दिस साइड। अगर ये कहता है कि y स्मॉल की तरफ, तो इस साइड बनती, ये देखिए y स्मॉल y लार्ज x स्मॉल x लार्ज। अगर ये इस तरफ कहता तो ये लाइन यहां बनती, डिस्टेंस वही मेंटेन होती 15.2 जो आपने दी है, बट इट वुड बी हैव अ सिमिलरिटी ऑन दी y स्मॉल डायरेक्शन। ठीक, इसकी जगह हम कहते हैं कि x लार्ज, तब भी ये y स्मॉल की तरफ बनती, इस तरफ नीचे की तरफ।
और कहते हैं कि एक्स स्मॉल तो इस तरफ बनती जो कि वाई लार्ज की तरफ. सो दो बोथ आर इन कॉम्बिनेशन, एक्स स्मॉल एंड वाई लार्ज, ये दोनों कॉम्बिनेशन में है. और यहाँ पे एक्स लार्ज और वाई स्मॉल कॉम्बिनेशन में है. In this case only. Okay, and distance would be only in a positive direction. आप यहाँ एपीटी में नेगेटिव वर्ड्स नहीं सुनेंगे. Now, by a point and angle made with a line. For example, मुझे लाइन नंबर 6 ड्रॉ करनी है. लाइन नंबर 6 ड्रॉ करनी है जो कि लाइन नंबर 1 से 30 डिग्री का 30.45 डिग्री का एंगल बनाए, बट पास हो पॉइंट नंबर P1 से. In this case, line number 6 would be LINE, pass through point number V, P1 at angle 30.45 to the line number L1. Okay. Now, by an angle with a x-axis and intercept with a y-axis. अब देखते हैं कि x-axis से कोई एंगल बनाए, x-axis से कोई एंगल बनाए, कोई लाइन ऐसी हो जो मुझे L7 ड्रॉ करनी है, जो x-axis से पर्टिकुलर एंगल बनाए लेकिन y-axis को इंटरसेक्ट करे एट सम डिस्टेंस. ओके, हो सकता है ये लाइन ऐसी भी हो सकता है ये लाइन इस तरह से भी हो सकता है ये लाइन इस तरह से भी हो. So anyway, it should have to make an angle particular distance. Is it? In this case, what is my syntax? L7 line at angle -45 because the angle is in a clockwise direction from this. So if it is 0, then it would be a negative. Okay. Intersection at y at a 75 यूनिट, जो भी यूनिट होगी mm इंच वगैरह उसी की बात करेंगे, 75 यूनिट. फिर बात आती है नेक्स्ट एक और लाइन डेफिनेशन की, जो ये कहती है कि बाय अ पॉइंट एंड मेक अ टेंजेंट टू अ सर्कल. फॉर एग्जाम्पल हियर C1 सर्कल इज अवेलेबल. मुझे लाइन नंबर 8 बनानी है जो पॉइंट P1 से पास होती हो बट इस सर्कल के टेंजेंट बनाती है. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन इज दिस पॉसिबिलिटी एंड वन इज दिस पॉसिबिलिटी. तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में हम किस तरफ जाएंगे? हम जाएंगे इस तरफ. मैं बताता हूं आपको कि हम कहेंगे कि टुवर्ड्स द राइट जाना है या टुवर्ड्स द लेफ्ट जाना है. ओके, टुवर्ड्स द राइट जाना है, राइट और लेफ्ट ये वाले होंगे, राइट और लेफ्ट. सो line number 8 LINE pass through point number P1, left tangent to C2, left and tangent to C2. So left tangent to C2. तो इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ होगी. ये इसका लेफ्ट है. अगर इसकी जगह मैं लिखता RIGHT, right, in place of left, the line would be this. टेंजेंशियल टू टू सर्कल, अगर दो सर्कल कोई है ऑलरेडी अवेलेबल C1 एंड C2 और उन दोनों से ही टेंजेंट ड्रॉ करना है, चाहे एक टेंजेंट ये भी हो सकता है, एक टेंजेंट इसका ये भी हो सकता है, दो टेंजेंट हो सकता है, तो अब दोनों टेंजेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. सो इन केस में टेंजेंट के लिए हम कैसे करेंगे? इसी में भी इसके लेफ्ट और राइट चूज करेंगे. लेफ्ट एंड राइट बोथ के जो कॉम्बिनेशन में बैठेगा, लेफ्ट एंड राइट जो कॉम्बिनेशन में बैठेगा, इसका लेफ्ट ऊपर वाली ड्रॉ होगी. इस तरीके से चेक करते हैं. सो लाइन नंबर 8 मैंने बनाई है ये क्रॉसवर्ड दोनों के. लेफ्ट टेंजेंट टू C1, लेफ्ट टेंजेंट टू C1 इसका यहां अपीयर हो रहा है, और राइट टेंजेंट टू C2 इस तरफ अपीयर हो रहा है, इसलिए ये यहां जा रहा है इस तरीके से. अगर इसकी जगह आप ये लेफ्ट और राइट चेंज करेंगे, सो यू विल गेट दी. हम इसको एक एक्सरसाइज करके भी देखेंगे इफ टाइम परमिट्स. नाउ एक और कहानी है
कि लाइन डेफिनेशन अगेन है टेंजेंशियल सर्कल एंड एट एंगल मेड विद अ लाइन। ओके, इन दिस केस लाइन एट एंगल, कोई भी आप एंगल की वैल्यू देंगे, फिर लाइन के सिंबल असाइन करेंगे L1 L2 L3, या एंगल देंगे 45 43 44, फिर वही एक्स लार्ज वाई लार्ज एक्स लार्ज वाई लार्ज और वाई स्मॉल और टेंजेंट टू सर्कल, इस तरीके से। फिर लाइन नंबर 10 हम लिखेंगे जैसा मैं इसमें एग्जांपल दिखाया हुआ है कि कोई सर्कल है सी, ठीक, तो उस सर्कल से टेंजेंट पे लाइन खींचनी है, बट एक एंगल बनाना है जो लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है L1 से, यानी ये दोनों पहले से है। L1 से तो मुझे एक एंगल बनाना है 45 पे और वो लाइन पास होनी चाहिए सर्कल से टेंजेंशियली। सो सिंटैक्स वुड बी लाइन at angle 45 to L1 towards the y large tangent to C1 या C सर्कल। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फाइन। नाउ कमिंग टू अ सर्कल, कि सर्कल की डेफिनेशंस कैसे होती है। सर्कल की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें लाइन और पॉइंट की तरह बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। बाय सेंटर एंड रेडियस, कोई भी सेंटर आप असाइन करिए, जैसे सर्कल सेंटर एक्स वाई एंड रेडियस। तो सिंटेक्स क्या होगा, जैसे C1 सर्कल है, सिंटेक्स है CIR CLE, ये दोनों कहेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और दिस वुड बी ट्रीटेड एज ए रेडियस। फिर सर्कल सेंटर पॉइंट रेडियस रेडियस इस तरीके से भी है, जैसे कोई सिंबल है, वेरिएबल है C1A सर्कल एंड सेंटर, उस केस में आपको सेंटर पॉइंट अगर पहले से कोई डिफाइंड है, पॉइंट नंबर P है मेरा यहां पे, और इसके आसपास मैं एक सर्कल खींचना चाहता हूं या बनाना चाहता हूं या ड्रॉ करना चाहता हूं कोई C1 सर्कल, इसको मैं नाम देता हूं C1A, ऐसा कोई है, और पॉइंट नंबर P, तो मैं इसलिए इसके लिए मैं इस तरह के सिंटैक्स लिखूंगा, सर्कल सेंटर P1 रेडियस 45, तो ये रेडियस 45 से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश रहेगी हमारी। बाय सेंटर एंड टेंजेंशियल लाइन, कोई लाइन है ऑलरेडी अवेलेबल जिसका नाम है मेरा लाइन नंबर 1, और मेरे पास ऑलरेडी कोई पॉइंट नंबर P2 अवेलेबल है, उस पे मुझे सर्कल, दिस वुड नॉट बी देयर, उस पे मुझे सर्कल स्केच करना है यहाँ पे C2। इन सच केस C2 सर्कल सेंटर P2 but tangent to line L1, what this will decide, tangent to line L1, what this will decide, this has been decided, decide the P2 is decided, decide the xy coordinate of the center of circle, but this would decide the radius. Is it okay? ये गैप कौन डिसाइड करेगा, यही गैप है जो हमें रेडियस चाहिए, तो ये गैप हमारा डिसाइड हो गया कि इससे टेंजेंट से पास होनी है, दैट इज व्हाई द गैप इज डिसाइडेड। नाउ बाय अ सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस, बाय अ सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस, अगर कोई सर्कल है, कोई सर्कल हमें स्केच करना है C3, सर्कल सेंटर, पॉइंट नंबर 2 मेरा सेंटर हो जाएगा और पॉइंट नंबर 3 मेरा, फॉर एग्जांपल यहां मैं कहता हूं मेरा पॉइंट नंबर 2 अवेलेबल है ऑलरेडी किसी भी उसमें, और ये मेरा पॉइंट नंबर 3 है अवेलेबल है, तो मुझे ये सर्कल खींचना है जिसके लिए मुझे पॉइंट नंबर P2 और P3 के बीच में खींचना है, और मेरे पास रेडियस के लिए मेजरमेंट नहीं है, उस केस में मैं ये सिंटेक्स दूंगा कि सर्कल, ड्रॉ द सर्कल एट अ सेंटर P2 and have to be passed through P3, just it. So this will decide the center and this will decide my radius. Then 3 point on a circumference, again मेरे पास सेंटर नहीं है और मुझे सेंटर चाहिए भी नहीं, मैं ट्राई करता हूं कि बिना सेंटर के ही ड्रॉ करूं, बट आई हैव अ 3 point
I have a 3-point consecutive and I need to draw a circle with this 3 point only. In this case, अगर ऐसा कुछ है जैसे आपका पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 इस तरह से है, तो आप सीधा सीधा डिफाइन कर दीजिए C4 वुड बी सर्कल पास थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट, यहां से पास होते हुए एक सर्कल बन जाएगा. सो दिस इज माय P1 हो सकता है, ये मेरा P2 हो सकता है, ये मेरा P3 हो सकता है. So no need to decide as per the law of mathematics, they would decide the center. So by the center and tangential circle, कोई भी सेंटर आपके पास अवेलेबल है और इस सर्कल के टेंजेंट C2 सर्कल के टेंजेंशियल कोई सर्कल ड्रॉ करना है आपको, है ना. C2 सर्कल से कोई टेंजेंशियल कोई सर्कल C5 ड्रॉ करना है. तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, वन इज द इनसाइड एंड वन इज द outside. Okay, so in this case we would go with the syntax like this: C5 circle center, P1 is the center. जो भी सेंटर के पास होगा जनरली वो सेंटर की कोऑर्डिनेट्स होते हैं. लार्ज साइड टेंजेंट टू C2, तो ये ड्रॉ होगा. इफ इसकी जगह मैं लिखता हूं स्मॉल, तो ड्रॉ इस तरफ होगा. Okay, so in summary, what we have today seen, today we have seen the APT language for CSG part programming, various symbol, geometric statement like a point for a line, and different syntaxes for the circle also. So with this, the session is going to be end. If any question, please ask. Sir,